यस बेटा, मिसलेनियस बुक का बेटा, निकालो बुक। इधर ही आ जाते बेटा, सामने आ जाओ। या इधर बैठ जाओ, या इधर बैठ जाओ। ये बोर्ड दिखना चाहिए ना यार, इधर साइड है ना। इधर आ जाओ। चलिए, मिसलेनियस बेटा, we were doing chapter number 9 miscellaneous exercise. Chapter 9 sequences miscellaneous. Right? Yes बेटा, डाउट बोलो बेटा, पहले डाउट, फिर मैं अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा, एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन? ऑल डन? Anyone has tried questions beta? Any type of question? Okay, all of you first try question number 32, last one. All of you beta. Online students also try last question beta. Start doing question number 32 beta. And tell me what problem you are all facing. Today is the last date for sequence and series. ठीक है, अब इसमें आज मेरे ख्याल से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। अब मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका 32 है, वो बताओ कैसे करेंगे। All of you please try how we need to solve this question. Have you all understood the question beta? What question is asking basically? I am reading question for you beta. Question is, a manufacturer, sorry, 150 workers were engaged to finish a job in a certain number of days. 4 workers dropped out on second day. 4 more workers dropped out on third day, and so on. It took 8 more days to finish the work. Find the number of days in which the work was completed. Right? Sir, So, 11 is it? Answer is 11 beta. My is 11. Your answer is 11. मेरे ख्याल से चेक करो, ये आंसर नहीं है शायद। 11 इज नॉट द आंसर आई थिंक। मुझे गलत भी लग रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, लेट 25 आंसर। ओके, लेट वर्क finished in n number of days. N number of days. Let work finished in n number of days. Class 11th A. Let work finished in n number of
Ma'am, attendance is taken by who has taken the attendance, beta? Huh? Seema ma'am. Seema ma'am has taken. Should I ask? Offline student is 5. Online. Okay. That work finished in n number of days. So initially, how many workers we have, beta? Initially, online student, beta, please tell me how many students are there? Bolo, beta. Initially, how? 20. 150, right? Initially, number of workers is equal to 150, right? Now, work finished in number of days in this situation, not in second situation, beta. In this situation, if we start with 150, right? So in how many number of days we will finish our work? According to, yes, beta? N minus 8, right? N minus 8 days. Is this clear, beta? How this N minus 8 comes, beta? Online student, beta? Because the 8 was the extra number of. Yes, because if we reduce 4 workers on the daily basis, that work is finished in 8, would taking 8 more days to finish, right? So work finished in n minus 8 days. Now, in this initial stage, beta, total number of workers, is equal to, in this situation now, tell me the total number of workers to complete this work. कितने वर्कर लगे टू कंप्लीट दिस वर्क? कैसे होता है बेटा? फर्स्ट डे वी हैव 150, सेकंड डे वी हैव 150, तो 2 दिन में कितने हो गए? कितने वर्कर लगे? 300. ऑन 3 days में कितने हो गए? 450. What we are doing? N minus 8. We are multiplying with the number of days. तो टोटल वर्कर आ जाएंगे बेटा. चलो, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इक्वल टू 150 per day, and we required n minus 8 days to finish this job, right beta? Now this is the first case. Now second case is what? Another case. Initially we have 150 workers, right? Next day 4 workers left the job, 146. Next day again, right? So this is 144, right? 142, sorry, yes, it is 140. Next 138, and so on, right? So according to this we have taken, एक चीज बताओ, दोनों सिचुएशन में मेरा काम तो बराबर है ना? वर्क जो है दोनों सिचुएशन में वर्क सेम है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स और टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन दिस सिचुएशन, दिस शुड बी सेम, क्योंकि इसमें 4 लेबर कम हो रही है, तो 8 days वो ज्यादा ले रहा है. मैंने n days में ही कर दिया जितने दिन में वो खत्म होना चाहिए 150 के अकॉर्डिंग. तो यहां से हम निकालेंगे अगेन नंबर ऑफ वर्कर्स. तो फर्स्ट डे 150 है, तो ऐड कर रहे हैं ना बेटा वर्कर्स को, तो कितना आएगा बेटा? n/2, फॉर्मूला इज 2a plus n minus 1 d. So it is n is unknown to us, and twice into 150 plus n minus 1 d की वैल्यू बताओ बेटा कितनी है? कितनी? ध्यान से देखो. -4. -4, वेरी गुड बेटा. सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखनी है आपको, ठीक है? वो तो 4 days तो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन हम जब सीक्वेंस बना लिया हमने इसको एपी, देन वी फाइंड द कॉमन डिफरेंस बाय सब्ट्रैक्टिंग सेकंड -1, थर्ड -2, इस तरीके से करके करते हैं. अब इसको सॉल्व कर लो बेटा. दिस इज n/2, 300 minus 4n plus 4, और सिंप्लीफिकेशन करो बेटा इसकी. दिस इज
This is visible. So it is n by 2. 300 plus 4 is 304 minus 4n. Right? Now, this is 1 and this is 2. So according to question, 150 into n minus 8 is equal to n by 2, 304 minus 4n. मुझे इसको सॉल्व करके n की वैल्यूज बताओ. दो वैल्यूज आएंगी, दोनों बताओ पहले मुझे. प्लीज सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ n. Sir, you are not audible. I'm not audible. Yes. Now I'm audible, beta. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. You are not audible. Okay. At that time, I was not saying anything better. I'm just calculating in my mind. So it is 4n square and n term we have 300 and minus 304. So it is minus 4n. And here we have 2400 equal to 0. So it is n square minus n minus 600 equal to 0. Now beta 24 and 25. Okay. N minus 25 n plus 24 equal to 0. Right? So I write something here. After this will give you n equal to 25 and minus 24. This is rejected because number of days cannot be negative. So we have n equal to 25. This is यही आंसर था ना बेटा. हिमांशु आपने देखा था बेटा. इसमें बोलो कोई डाउट है तो बताओ बेटा. ठीक है ना. इस टाइप के क्वेश्चन देखो पर्सनली मैं बता रहा हूँ मुझे अच्छे लगते हैं जिसमें थोड़ा सा आपका मेंटल एक्सरसाइज होती है. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दोज हु लाइक्स मैथमेटिक्स दे डेफिनेटली लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है ना. तो थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढो. ज्यादा होती थी चांसेस. ठीक है बेटा. ये मेरी तरफ से अच्छा क्वेश्चन था और पूरी एक बार गो थ्रू करो फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन से लेके एंड तक. जिस क्वेश्चन में भी आपको लगता है सर एक please see question number 1 to 5. Please see question number 1 to 5. You want any question to discuss on board beta? Online student, offline both. From first to 5.
आई डोंट थिंक एनी क्वेश्चन रिक्वायर्ड बिकॉज फर्स्ट 5 क्वेश्चन में आपका वही लास्ट के जो क्लासेस में आपने पढ़ा है 10 तक वही चीजें यूज हो रही है। उसके बाद 6 से लेके 12 तक क्वेश्चन देखो कोई आपको लगता है कि सर डिस्कस करो, चेक करना बेटा एक बार, ऑनलाइन ऑफलाइन ऑल। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 6 to 12. Any question you wish to discuss in the class? Six to 12 all that? Okay. 6 to 12 स्लॉट में कोई क्वेश्चन बेटा? आरव आपका बेटा कोई? 6 to 12 में, हाँ देखो देखो देखो। क्वेश्चन नंबर 17, वेरी गुड। दिखाना भी 17 क्या है। ये तो सिंपल है यार, ये तो कर लोगे। ए बी सी डी आर एन जीपी बोला ना, ए की वैल्यू ए ही है, बी की वैल्यू ए आर ले लो, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर एंड डी की वैल्यू ए आर क्यूब और सॉल्व कर दो। ठीक है ना? क्या बोला है आपसे? जीपी में बोला है ना बेटा, तो जीपी में क्या होता है? मिडिल टर्म का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब उसमें ये वैल्यूज डालो ए बी सी डी की जो मैंने बोली है, दोनों इक्वेट हो जाएंगे, हैंस जीपी। प्रूव करना है ना, ये तो ये सिंपल है, थोड़ा सा बस इसमें अलजेब्रा लगानी है बस आपको। इसके अलावा बोलो कोई और क्वेश्चन, और कहते हैं तो बोर्ड पे सॉल्व करो बेटा। ठीक है ना? एक हिंट से अगर चल जाता है काम तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन स्टूडेंट सबने सब कर लिया क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हिंट है? विच वन बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 7। 7, अच्छा 7 डिस्कस करता हूँ बेटा। ओके दिखाना बेटा 7 क्या है। यस ये तो ठीक है, क्वेश्चन ये कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आई एम टेकिंग बेटा, एक बार बस लिख लो बेटा। एक if f is a function satisfying this one, f of x plus y is equal to f of x into f of y for all x y belongs to natural number. Remember this thing, we can use natural number only, such that also given f of 1 equal to 3 and summation fx from x equal to 1 to n is equal to 120. Find the value of n. We need to find n equal to. This is my question, beta. Right? First, we need to understand what is the meaning of this. We are taking this one, beta. Summation f of x from x equal to 1 to n is equal to 120. This symbol is known as summation. Summation matlab sum on from 1 to n terms, right? So we write this as f of 1 plus f of 2 plus f of 3 plus dot 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 up to f of n equal to 120. This is given. Now my task is to get the value of 1, f of 1, f of 2, f of 3. And in this f of 1 is already given. So next what is required beta? 2. तो अब 2 निकालने के लिए मैं इसको यूज करूंगा. If we need to find out the value of 2, I am taking x fix, कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है.
मैंने इसको 1 रखा एंड टेकिंग दिस एज 2 1 सॉरी, तो 1 + 1 x भी 1 y भी 1 अकॉर्डिंग टू दिस रूल बेटा, दिस इज f of 1 f of 1, राइट। तो ये बन गया आपका f of 2, f1 is 3 into 3, 3 into 3 is what, 3 square which is 9। नेक्स्ट लेते हैं बेटा, x को फिक्स रखता हूं 1 और y को 2 कर देता हूं। आपकी मर्जी उल्टा कर दो, 2 और 1 कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ना यहाँ पे। नाउ राइट f of 1 f of 2, f of 1 is 3, f of 2 is 9 है बेटा, तो 3 into 9 is 27 एंड 27 का मतलब 3 क्यूब। एक सर और f निकाल of लेते x हैं, plus y में वो टर्म लेनी है ना जो निकालनी है, जैसे f of 3 निकालना है तो 1 + 2। ये लेना है बेटा ये, हाँ अब f of 3 आ गया ये मेरा, राइट। और अगर f of 4 निकालना है तो देखो f of 4 मतलब 1 + 3 लिख लिया, f of 1 into f of 3, f of 1 is 3, f of 3 is 3 cube which means 3 4 81। क्या बेटा, हाँ मतलब सॉल्व करेंगे, मैं तो आपको एक तरीका बता रहा हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर रहा। अब ये हो गया आपके पास, दिस वैल्यू इज 3, 3 स्क्वायर 3 क्यूब एंड सो ऑन, 3 raised to the power n equal to 120। नाउ दिस इज जीपी, लेफ्ट साइड इज योर जीपी। जीपी में वैल्यू ऑफ ए इज 1, आर इज 3, तो फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग दी सम टू n टर्म्स इन दिस, a r raised to the power n minus 1 upon r minus 1 equal to 120। हो रहा आंसर, चलो उसमें क्लियर हो जाएगा। a की वैल्यू 3, दिस इज 3 raised to the power n minus 1, right, is equal to 120। so now it is 2 240 80, yes, 3 raised to the power n minus 1 equal to 80, 3 raised to the power n equal to 81, n equal to 4। this is the answer बेटा। देखना बेटा क्लियर है ये, किसका डाउट था ये, 7th क्वेश्चन। देखो बेटा एक बार, कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट हो फिर दोबारा से पूछो उसमें। डन बेटा, नो सर। और बताओ बेटा कौन सा क्वेश्चन है। एक बार फर्स्ट पेज को क्लियर कर दो कि कोई फर्स्ट पेज में कोई और क्वेश्चन लग रहा हो तो बता दो, कोई भी जैसे आपको लगता है ना कि एक बार डिस्कस हो जाए बोर्ड पे, बेशक आपको 50 60 70 80% आता हो, कोई बात नहीं। ओके फर्स्ट पेज इज क्लियर बेटा, पेज नंबर 199, नो डाउट नाउ। यस सर। ठीक है बेटा, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ, ऑफलाइन नो डाउट, ऑनलाइन बेटा 2 4 बच्चे बोल दो नो डाउट बेटा, ताकि फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नो डाउट सर। Yes, sir, no doubt. ओके नो डाउट, राइट। नेक्स्ट पेज आ जाओ बेटा, देखो एक बार 19 20, आई थिंक 19 20 तो मैंने डिस्कस किया आपके साथ, ठीक है। चलो फिर वर्ड प्रॉब्लम में देखो 32 के अलावा कोई क्वेश्चन एक मैं ही बताता हूँ, आप ट्राई करो। ओके 29th क्वेश्चन ट्राई करो बेटा, ऑल ऑफ यू बेटा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 29, दिस इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, आपको चांस दे रहा हूँ एक बार, प्लीज ट्राई। यस बेटा नोट करो।
लास्ट लाइन क्लियर नहीं हो रही? हाँ, अगर 8 सेट ऑफ लेटर, क्या बोल रहे हैं? अ पर्सन राइट्स अ लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड, एक ने 4 को लिखा, he asked each one of them to copy the letter and mail to 4 different, यानी मैंने 4 को बोला, फिर अगले कितने को गए, चला गया 16 को, 16 को, राइट, फिर अगले 64 को, दिस वे। और 8 सेट बनाने हैं, पहला सेट था 1 2 4, देन 4 to 16, 16 to 64, ऐसे 8 सेट में कितने पैसे लगेंगे? और यहाँ लिखा है इन्होंने, सर assuming मेरा that आंसर chain is 4 not broken and it costs 50 पैसा। क्या आ रहा है बेटा आंसर? करो करो, सर 4 raised to the power आपने आंसर 7 बताया into था। 2 4 raised to the power सर 7 मेरा into आंसर 2 to the power 15 आ रहा है। 2 to 7 the into power 2 15, एक आंसर Yes, ये sir. 4 into, चेक करो भाई आंसर चेक करो पीछे क्या आंसर सर है। पहला मेरा 4 into the 4 to the power 7 into 2 है। 4 to the power 7 into 2, ये बेटा देखना मैंने जो लिखा ये करेक्ट है? ये वाला 43690, 43690 बेटा आंसर ये है, देखो आप, रुपीज 43690, जिसका ये आंसर आएगा वो करेक्ट है बेटा। 0.5 रुपीज पर पोस्टेज लगती है बेटा, पर लेटर, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो फर्स्ट आई नीड टू फाइंड आउट हाउ मेनी लेटर्स वी हैव पोस्टेड, यानी सम ऑफ 8 सेट, यानी S8 निकालना है मुझे, पहले S8 निकालो, और जो मुझे क्वेश्चन दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी सीरीज ये बन रही है 1 4 1 to 4, देन 4 raised to the power कितना होगा भाई, 4 square, देन 4 cube एंड so on, 8 सेट का निकालना है मुझे। So in this situation A equal to 1, R equal to 4, which is greater than 1, formula is A R raised to the power n, n का मतलब है 8 minus 1, R minus 1, so it is 1 into 4 raised to the power 8 minus 1 upon 4 minus 1 into हाफ कर दो। अब चेक करो बेटा क्या आंसर आ रहा है, देखना भाई, मुझे जो लग रहा है वो ये है, या मैंने भी गलत किया है, ये आपको बताना। लॉजिक ढूंढ के मैं भी गलत कर सकता हूँ, सर 8 हमेशा सेट ध्यान में रखना। पूछा है तो सिर्फ 4 7 का नहीं, 4 raised to the power 7 का नहीं निकालेंगे। बेटा एक सेकंड, सर हमसे पूछा द अमाउंट स्पेंट ऑन 8 सेट ऑफ लेटर्स, तो 8 सेट ऑफ लेटर्स होगा A7 टर्म, A8 टर्म ओहो, होगी A अच्छा raised to the power 8 7। बोला है या 8 सेट ऑफ लेटर, ओके ओके ओके, रुको रुको रुको, एक सेकंड में दोबारा पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। अ पर्सन राइट्स अ लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड, he asked each one of them to copy the letter and mail to 4 different person with instructions that they move the chain similarly, assuming that the chain is not broken and that it costs rupees 50 paisa to mail one letter. Find the amount spent on the postage when 8 set of letter is mailed. 8 set of letter is mailed. एट सेट हो गया, यानी 8 टर्म, या ये भी तो हो सकता है ना, इसका मतलब कि 8 सेट्स तक हमने लेटर्स भेजे तो कितनी पोस्टेज में स्टैम्प्स आई हैं, ठीक है ना। चेक करो एक बार, इसकी कैलकुलेशन चेक करो, अभी लैंग्वेज से क्लियर हो जाएगा कि हम गलत हैं या सही है। इसकी कैलकुलेशन करो बेटा, देखो 4, एक सेकंड, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही गलत पिक कर रहे हैं। अ पर्सन राइट अ लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड, he asked each one them to copy the letter and mail to 4 different person with instruction that they move. अच्छा पहला सेट तो 4 लेटर्स का है, पहला लेटर 4 सेट का है, कोई नहीं ऐसे कर लेते हैं 4 टाइम्स। अब ठीक है देखना बेटा,
चेक करो कैलकुलेशन, अब आ रही कैलकुलेशन। देखो यही है, क्वेश्चन को पिक करना, ठीक है ना, क्वेश्चन को पिक करना कि कैसे हमने गलत लिया, क्वेश्चन को क्या लिया। अब लैंग्वेज से ही बहुत फर्क पड़ जाता है। पहला जो सेट स्टार्ट हो रहा है जब हमने 4 बंदों को लेटर दे दिया है, वो फर्स्ट स्टेप है हमारा, इसका मतलब फर्स्ट स्टेप वो है, ठीक है। देखना बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट, बेटा एक बार ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ नहीं हुआ? अमन तोमर इज इन क्लास और नॉट? अमन, यस सर। अमन क्लियर हुआ बेटा क्वेश्चन? ही आपकी अप्रोच क्या थी क्वेश्चन में? आप ये मान के चलो कि सर ने गलत किया है। इज देयर एनी अदर मेथड फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू कि कोई और तरीके से कर सकते हैं? सर और कोई तो नहीं लैंग्वेज, सोचा। यही है तरीका आपके पास भी? और कोई है भाई? शाश्वत जी आप हो क्लास में बेटा? सर मैंने तो शाश्वत, 8th वाले के लिए कैलकुलेट करा था। तो उससे आंसर क्या है? गलत है आंसर? यस सर, सर मेरा आंसर 3000 समथिंग आ रहा है उससे। तो अभी वो गलती चेक करी ना बेटा हमने बुक में पढ़ के, क्योंकि है ना एक कई बार क्या होता है कुछ क्वेश्चन करते हुए पहली बार में क्वेश्चन को हम ढंग से पिक नहीं करते, तभी कहते हैं कई बार कि एटलीस्ट एनसीईआरटी के आंसर्स को भी मैच किया करो। फिर आपका आंसर रॉन्ग आएगा तो आप एक बार फिर दोबारा से रीड करोगे क्वेश्चन को, ठीक है। उस क्वेश्चन में पिक करना है। तो इन दिस क्वेश्चन बेसिकली द सेट स्टार्ट फ्रॉम व्हेन वी हैव गिवन द फर्स्ट पर्सन हैज गिवन लेटर टू 4 पर्सन, तो 4 से स्टार्ट होना है आपका बेसिकली। तो पहला बंदा है वो 4 है, देन 4 का स्क्वायर, देन 4 क्यूब, देन 4 4, तो ऐसे करके 8 सेट का करना है मुझे इसको, ठीक है बेटा। बोलो बेटा कोई और डाउट? अच्छा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। लक्ष्य, लक्ष्य इज देयर और नॉट? बंसल साहब, लक्ष्य बंसल इज नॉट इन क्लास। कुंजल, Yes, sir. कुंजल क्लियर है बेटा क्वेश्चन? Yes, sir. कोई बात नहीं, देखो एक बार में क्लियर नहीं हुआ, एक बार और ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में फिर आपका जो डाउट होगा वो डिस्कस करेंगे बेटा। दिशिता, दिशिता इज इन क्लास और नॉट? Yes, sir. दिशिता इज दिस क्लियर टू यू बेटा? Yes, sir. ओके। भव्या, भारद्वाज, वी हैव 2 भव्या। Yes, sir. भव्या भारद्वाज है क्लास में? नहीं है? Yes, sir. भव्या इज दिस क्लियर बेटा? मैं फिर से ये कह रहा हूँ, नहीं हुआ कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करना बेटा, ठीक है, मेरा सबके लिए है ये। पहले एक बार Yes, खुद से कुछ, हाँ बेटा बोलो। सर बस क्लियर है आपकी आपको? स्क्रीन बीच में थोड़ी ब्लर हो रही है, बाकी फिर समझ आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है बेटा, जितनी रिसोर्सेज जिस तरीके से ना, अब मैं नेक्स्ट क्लास से ना एक और चीज ट्राई करूंगा, मेन कैमरे पे करूंगा। अभी मैंने सेल्फी कैमरा पे लगा रखा है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मेन कैमरे से करूंगा तो शायद मुझे किसी बच्चे ने बताया ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट आएगा शायद, है ना भाई? ये होता है ना मेन कैमरा शायद ज्यादा पिक्सल का है जैसे मेन कैमरा ज्यादा अच्छा होता है नॉर्मली, है ना, ज्यादा होता है Yes. ना। मैं अभी आप ही के सामने ट्राई करूं बेटा, एक सेकंड देखना, सिर्फ पिक्सल का देखना, एक सर सेकंड होल्ड टोटल करना बेटा। आप ही 8 स्टम्प तक का सम जो आ रहा है ना वो बहुत कम आ रहा है इससे। गलत आ रहा है, अभी चेक करते हैं चलो। सर जो हमें आंसर दिया हुआ है उससे तो कम आ रहा है, समझ नहीं आ रहा कैसे है। हमें जो आंसर दे रखा है उससे गलत आ रहा है। अब देखना बेटा एक बार बोर्ड की क्लियरिटी देखना बेटा, कुछ फर्क पड़ा बेटा? देखना सर अब ज्यादा सही दिख यस रहा है। सर बेटर है। अब ज्यादा बेटर है बेटा? Right. चलो, Yes. बस यहाँ पे है कि मुझे कुछ दिखता नहीं है, मुझे बार बार स्क्रीन के पीछे आना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, आप ट्राई करोगे बेटा ये। अगर ये क्वेश्चन में आपको डाउट है तो एक अटेम्प्ट आप पहले खुद दोगे, देन मैं नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा से डिस्कस करूंगा इसे। और कोई बोलो इसके अलावा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर, सर क्वेश्चन नंबर Question 26 का बी पार्ट कैसे होएगा? 26 का, 21 का 21 का बी पार्ट, उसको इस फॉर्म में लिख लो बेटा पहले, जैसे 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 and so on. So write down this as 6 by 10
66 by 100, then 666 by 1000. This way you first write and now this convert in normal question. तो आप उसके हिसाब से सॉल्व करो. क्या तरीका था इसमें बेटे? कॉमन लेके कर दो. मैम ने कराया ना बेटे कैसे क्वेश्चन, एग्जाम्पल में भी है. बोलो बेटा, विल यू बी एबल टू सॉल्व? नहीं तो करके देखो अभी, नहीं तो इस तरीके से ट्राई करना फिर आप अपने आप. अदरवाइज एक बार ये क्वेश्चन नंबर 30 और ट्राई करो मेरे कहने पे. वर्ड प्रॉब्लम है अगेन, एक बार 30 और ट्राई करो अपने आप. क्वेश्चन नंबर 30. ये जो नीचे वर्ड प्रॉब्लम है बेटा, ये सारी रियल लाइफ प्रॉब्लम है बेसिकली. ये लाइफ में होती है, हमारे साथ सिचुएशन आती है. आरो हाँ बेटा. लगेगा हाँ, वो 10,500 पे लगेगा या 10,000 पे लगेगा? इसमें सिंपल इंटरेस्ट है ना. A man deposited this in a bank at a rate this. Simple interest. Find the amount in here. 10,000 पे लगता है. सिंपल का मतलब जो इनिशियल आपका जो डिपॉजिट है ना, उसी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होता है. और जब कंपाउंड बोलते हैं तो जो फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट है, नेक्स्ट ईयर उस अमाउंट पे लगता है. ये डिफरेंस होता है. ठीक है. सिंपल इंटरेस्ट का मतलब इनिशियल अमाउंट, प्रिंसिपल वैल्यू पे. क्या बन रहा है आपका, जीपी या एपी बन रहा है, ये बताओ क्या बनेगा. बना दो बस, देखो क्या है. अब वैसे इन्होंने ये नहीं बोला कि सीक्वेंसेस यूज करो, आपके पास नॉर्मल तरीका भी हो उसको भी अप्लाई कर सकते हो. A man deposited rupees 10,000 in a bank at a rate of 5% simple interest annually. हर साल 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. Find the amount in 15 years since he deposited the amount and also calculate the total amount after 20 years. 15th ईयर में बताओ और 20th ईयर में बताओ बेटा. सीधा सा फॉर्मूला है बेटा, देखो ये वाला. ये किसका फॉर्मूला है? अगर मैं ऐसे लिख दूं तो देखना बेटा. हाँ हाँ बेटा. प्रिंसिपल इज 10,000, देन 1 प्लस 0.5% है ना बेटा. कितना परसेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट? 5%. तो 0.05 रेज टू द पावर 15. एक आपसे ये पूछा है, यानी इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो इसको उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया होगा. देखना बेटा, ये तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी. 15 और 20 पे दे रखा है, कैलकुलेट करा हुआ है. तो फिर तो करो भाई कैलकुलेट. आ रहा है ये आंसर? एक मिनट चेक कर लेते हैं क्या आंसर इसका. मिसलेनियस 17,000 एंड 20,000 हो रहा है बेटा. मैं तो यही पूछ रहा हूँ ना. मैं तो बहुत, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं जानबूझ के कई बार बहुत गलत भी करता हूँ, यही चेक करने के लिए कि मेरे बच्चे कितना अटेंटिव है और खुद भी क्वेश्चन पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हैं. मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या मैंने सही किया है या टोटली रॉन्ग है. ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को बोल रहा हूँ बेटा मैं. ठीक, तो सिंपल वाले से ही आएगा ना. ये किसका फॉर्मूला लिखा है मैंने? तो कंपाउंड का क्वेश्चन भी है इसके अंदर. देखो एक
बताओ कौन सा है वो कंपाउंड वाला क्वेश्चन? ठीक है ना? तो ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग है, ये जो मैंने किया है इस वाले में ये तो रॉन्ग है। तो बेसिकली क्या बनना चाहिए इस वाले क्वेश्चन में? आपने बताया बेटा, बोलो। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, P इंटू आर इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। और शुरू में क्या करेंगे बेटा? प्रिंसिपल भी तो ऐड करेंगे। ये तो इतने साल का रेट ऑफ वो आएगा ना, इंटरेस्ट आएगा, है बेटा? ये हो गया 10,000 प्लस 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 टाइम 15 और 1000, सॉरी 100, 20 कैंसिल। ठीक है भाई, कितना बना भाई ये? एक सेकंड 15 साल पूछे ना तो 14 हुआ ना बेटा, फिर आपके पास 14 हुआ ना। पहले साल में देखो सीक्वेंस ऐसे बनेगी, 10,000 प्लस 10,000, इसका 5% कितना होगा बेटा? 10,000 का 500 रुपए ना, 500, तो 10,500, देन नेक्स्ट आएगा 11,000 एंड सो ऑन। तो 15 का मतलब है आपका, ठीक है ना, आफ्टर 14 ईयर। तो देखो कितना बन रहा है ये, 14 5 जा 70, 7,000। So now it is 10,000 plus 7,000 equal to 17,000। ये तो क्या नॉर्मल प्रोसेस है। अब आपके पास सामने आपके एपी है, ठीक है, तो मुझे कितनी टर्म्स का सम निकालना है आप उसके हिसाब से देख लो एक बार। अगर मैं खाली एपी को सॉल्व करूं तो एपी में बोलते हैं सम टू एन टर्म्स इक्वल टू, क्या होता है भाई एपी में सम का फॉर्मूला? n/2 2a 2a plus n प्लस minus 1/d। चलिए n है आपका 15/2, 2 इंटू 10,000 प्लस 15 माइनस 1 इज 14, d कितना है बेटा? 500। आप सॉल्व करो बेटा इसे एक बार, तो चेक करो क्या आंसर आ रहा है आपको। यस यस बेटा, गलत आ रहा है? मुझे भी गलत ही लग रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, क्या गलती की फिर मैंने? One, 15 टर्म एंड 1, मुझे तो सही लग रहा है यार। हाँ, क्या बोला ना, एट द एंड ऑफ 15 बोला है ना, ये 15th ईयर, 15th ईयर का बिगनिंग नहीं, 15th ईयर का बिगनिंग मतलब 14th ईयर का एंड। इंटरेस्ट मिलता है ईयर के एंड में, तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा सर। आपको लॉजिक भी तो देखना पड़ेगा ना बेटा इसमें। सर इन अब चेक 15th ईयर बोला है यहाँ तो, है ना? हाँ, एट द एंड ऑफ 14th ईयर। ओहो, मैं एक्चुअली गलत निकाल रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक्चुअली टर्म निकालनी है वो, क्योंकि देखो मैं पैसा लिख रहा हूँ यहाँ पे, पहले साल में ये, दूसरे साल में ये, तीसरे साल में ये। मैंने आपको जो सीक्वेंस लिखी है वो अमाउंट के टर्म में लिखी है। तो एक सेकेंड, 15th ईयर का बिगिनिंग मीन्स 14, 14 माइनस 1 ए प्लस, ठीक है, a plus n minus 1 d, a is 10,000 plus 14 n minus 1 into difference is 500, 10,000 plus ये हो गया आपका 7,000 and this is 17,000। एक और क्वेश्चन पूछा ना इसमें, एक पार्ट और, क्या पूछा वो क्या एट द एंड ऑफ 20 है या फिर से वही पूछ रहे हैं? आफ्टर 20 ईयर, कैलकुलेट द अमाउंट है। आफ्टर 20 ईयर्स कितना अमाउंट है ये पूछ रहे हैं शायद, राइट? अब यहाँ पे आपसे S20 पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर।
ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा? क्या पूछा है इसमें, A20 पूछा है या S20 पूछा है, ये बताओ। S20, बस ये ध्यान रखना इसमें, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर वर्कशीट प्रिपेयर करके आपको भेजूंगा बेटा, आप उसको ट्राई करना है। अदरवाइज अब मेरे हिसाब से ये आई थिंक टॉपिक कंप्लीट है। अब हमें ये बताओ सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म का कौन सा टॉपिक बचा हुआ है हमारा? स्ट्रेट लाइन और लिमिट भी है ना बेटा? यस सर। सेट्स तो हो चुका है, सेट्स तो सबसे पहले चैप्टर हुआ बेटा। अच्छा स्टैट्स भी है, अच्छा स्टैट्स, ओके 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 ओके, हाँ सही सही। चलो बेटा अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बेटा, क्योंकि सेकंड टर्म का भी टॉपिक करने हैं मैं पहले बिफोर फर्स्ट टर्म। ठीक है बेटा, तो क्लास में ओवर कर रहा हूँ यहीं पे ही। नेक्स्ट क्लास में आपके फिर भी Thank कोई you, डाउट sir. होंगे तो डाउट करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बेटा उसके बाद, ठीक है। आई एम एंडिंग द क्लास नाउ बेटा।